Namaskar, this is Sonu Nigam, Hi, this is Jeet Ganguly. and you're watching Bollywood. Hangama. Sonu Nigam, one of my idols since childhood, someone who has been inspiring me and surprised me each and every time while singing. He killed it again as usual, in love with this song Dard from Sarabjit, and what a tremendous melody composed by Jeet Ganguly. Want to hear more of this duo? Respect. That's what Arijit Singh has said about the maestro Sonu Nigam and genius composer Jeet Ganguly and their song Dard, which is an outstanding melody from Sarabjit. First of all, huge pleasure to have you guys on Bollywood once again. Thank you. Thank you. And how do you feel that? I think a very wonderful way of just paying a homage from a junior singer as far as Arijit Singh is concerned. How do you react to that? Amazing. Arijit is उसको मैंने बहुत बचपन से देखा literally when he came for the first time in Fame Gurukul, and I remember when I saw him for the first time in that show, he almost fell down. So he is a good boy, and I also like the fact that besides being such a versatile singer, he also knows how to keep his exclusivity. So in a lot of ways I find him to be a very sensible young man with a lot of talent and a lot of acumen of keeping his exclusivity intact. And it's always good to hear good things from people who are doing so well right now. It inspires you in every way. But a lot of your fans, they're very happy that you're singing for movies like, say, once again, quite regularly now. So they're extremely happy with that. They would want much more of that. We've discussed that in the past, but I think your fans keep on asking for more. The sort of melody that somehow you bring to the table, we've spoken about in the past as well, that I think it's your innate love for music primarily, more than any other thing, or more the commercial aspect that many times people look into these days. Where is it that you had just, जिसको कहते हैं कि आपने ये गाना कहाँ से सजोया हुआ था? Because it really moves you. It really moves you at all levels. I think the way he sang is outstanding, but even the way music arrangements are, it's like really something else. Actually, the story of Sarabjit is very touching. Right. You know, इसमें जो passion है, इसमें जो दर्द है, वो actually वहाँ से ये गाना आया है. जी. और जब भूषण जी हमको फ़ोन किया from Germany, just few days back, उन्होंने कहा कि जीत मैं एक मुकड़ा भेज रहा हूँ आपको, just 4 or 5 lines, एक गाना बन सकता है इसके ऊपर. द मुकड़ा वाज वही मैं दर्दों को पास बिठा कर सो पंख अगर होते. हाँ, तो उनको पूछा मैंने क्या है मतलब गाना, मतलब बोले गाना जितना अब दर्द लेके बनाओ, मतलब ये सुना उनको अभी. तो मैंने आधा घंटा लिया और उनको सुनाया, मतलब बहुत अच्छा गाना है, ये सरबजीत के लिए है. देन ही टोल्ड मी द एंटायर सिचुएशन एंड स्टोरी, क्या है, कैसे बनाना है. एंड आई थिंक होता है ना, उनका बहुत अच्छा कान है और सोच भी है भूषण जी का, तो वो सिचुएशन में ये गाना जा सकता है, ये मतलब ये लिरिक्स फिट हो सकता है, उनको पता था ये. एंड ही हैज़ दैट नॉलेज ऑफ म्यूज़िक. एंड उसके बाद गाना बनाने के बाद सब एक साथ हम लोग कहा कि सोनू जी गाएंगे ये गाना, और कोई नहीं गा सकते. और अगर सोनू जी नहीं गाते ये गाना तो गाना नहीं बनता डेफिनेटली. मतलब आज लिसनर्स, इतने सारे लिसनर्स फेसबुक में, ट्विटर में सब इतना प्रेज़ कर रहे हैं गाना, और कैसे करके रिकॉर्ड किया है गाना, और थैंक्स टू हिम, ग्रेटफुल टू सोनू जी. ऐसा हालत में उन्होंने गाना गाया है, जब उनका ऑपरेशन हुआ था तभी ये गाना रिकॉर्ड हुआ था. You've sung Saw Dard from Jaane Man in the past, which I think one of your classic songs, and it will always remain like that. Somewhere, can we say that you have a lot of, I think any versatile artist should have various moods to just come up with. I think Rafi Saab had this wonderful, ability that be it sad songs, be it happy songs, he always had something new to offer to that. How do you look at this particular aspect? Because I've always maintained that, मैं हमेशा हर इंटरव्यू में शायद मैं कहता भी हूँ that कल भी मैं किसी से मैं कह रहा था कि सारे सिंगर्स एक तरफ, सोनू निगम एक तरफ, जो what you bring to the table is something else actually. आपको कुछ मतलब जिसको कहते हैं कि ऊपर वाले की आपके ऊपर कुछ है, that you have something which I think, and at the level of emotions primarily.
I think I've learned this from all the great artists of the world. जी Craft is craft, and there's a lot of technicality involved in any craft, whether it's painting, whether it's writing. For the writing, you have to know grammar, you see. But what good is grammar if you don't have the ethos or the real storytelling behind it? Mere vocabulary cannot make a great, great novel or great literature, whatever. Similarly, music is perhaps another expression of art and art forms. And what good is music with only notes and great words if you cannot really emote it and convey the message through your voice or through your rendition? So all the great people have done this, and I'm just following, and I'm trying to imbibe all those qualities in myself also. जी ये जो गाना हमने दर्द जो अभी मैंने गाया इनका जीत भाई का, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट कंपनी यू आर मूविंग अराउंड विथ, हैंग अराउंड. तो विद सत्संग बोलते हैं ना, जो सत्संग वाली बात है, जिसके साथ में आप घूम रहे हैं आप वैसे बन भी जाते हैं. इफ द कंपोजर इज फ्रिवलस देन यू कम आउट विद फ्रिवलस स्टफ ओनली. इवन सिंगर्स ऑल्सो स्टार्ट. सो आई नो जीत भाई फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. हिज फर्स्ट हिंदी फिल्म हैड मी for the entire album तेरे लिए. And over the years we have developed a very quiet, firm and a very intense and integral bond हमने build up किया है. ऐसा बहुत कम लोगों में होता है. You don't have to try. कोशिश नहीं करनी पड़ती कि यार दोस्ती बनी रहे, ऐसा नहीं होता. हम जहाँ भी कभी कभी बात भी नहीं करें, हम जब मिलते हैं तो हमारी आंखों में एक दूसरे के लिए उतनी इज्जत, उतना प्यार होता है. So he's also a very emotional person. That is why he got his due very late. But correct मिला. अब जो मिल रहा है वो class के साथ में मिल रहा है. I always used to sing his songs earlier also, and he was not getting that many Hindi films. He used to do a lot of Bengali stuff. जी तभी बोलता था कि जो काम आप कर रहे हो, जब आप उसका टाइम आएगा ना तो छप्पर फाड़ के भगवान देगा, और ऐसा हो भी रहा है. बिल्कुल. तो ये जो गाना दर्द का जब इन्होंने मुझे सुनाया, मुझे भेजा था, तो मैं अपने फार्म हाउस में उस दिन पहुंचा ही था, रिकवरी के लिए, हीलिंग के लिए पहुंचा था. तो मुझे याद है मैं पूल साइड में बैठ के पापा के साथ में बैठा हुआ था, एंड आई हर्ड दिस सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम. ऐसे क्या बनाता है आदमी, कहाँ से इतने प्रोफाउंड नोट्स आते हैं. और ऐसा भी नहीं है कि कुछ दिखाया जा रहा है कि उफ मैं ऐसा कंपोज़र हूँ, ये देखो मेरी ये कमर तोड़ कॉम्पोजिशन देखो, ऐसा नहीं है कुछ भी. बिल्कुल बिल्कुल. बड़प्पन, वो किसने बड़ा अच्छा कहा था, सलामत अली खान साहब ने मेहंदी साहब के लिए कहा था कि हम कूजे को समंदर दिखाते हैं और वो समंदर को कूजा में दिखाता है. ऐसा कूजा मतलब वो, शायद वो जो छोटा सा जो हाँ वो जो बर्तन हो छोटा सा, तो हाथों के उसमें, तो इनकी कॉम्पोजिशन बहुत बड़ी होती है और वो इतनी सी उसमें दिखा देते हैं अपना बड़प्पन. सादगी बहुत. तो और जो भी गाने आप सुनेंगे इनके, जो भी गाने हिंदी बंगाली जो भी सुनोगे आप, उनके गाने ऐसे हैं. एंड बस वो गाना बन गया, एंड वी वर लाइक, आई थॉट कि मैं उसी समय, क्योंकि मैं आया था फार्म हाउस में मेरे, मुझे भूषण ने फ़ोन किया, बोला आप आके कर दो गाने को, अर्जेंट है. देन आई टुक 3 days, इसमें 3 दिन के बाद में आता हूँ. देन आई वेंट बैक एंड डिड अ सॉन्ग. इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. मेरी सर्जरी को बस 12 दिन हुए थे, उस 12 भी नहीं, शायद उससे भी कम दिन हुए थे. एंड मैंने बैठ के इन्हीं कपड़ों में ऐसे ही पहली बार गाना गाया इनका, ऐसे बैठ के. सो इट वाज द सॉन्ग केम आउट वेरी नाइस. उस दिन स्टूडियो में एक डिविनिटी थी अलग से, जो ऑल ऑफ अस नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. फरीदुल, आपने जो कहा अभी ना, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ. जी बिल्कुल. सोनू जी के बारे में, सारे सिंगर्स एक तरफ, सोनू निगम जी एक तरफ. बिल्कुल. एक्चुअली काफ़ी सारे जो पुराने कंपोजर्स हैं ना, मिलते रहते हैं, डैडी के फ्रेंड्स हैं सब, तो बोलते रहे जी हमारे पास रफ़ी साहब थे, किशोर दा थे, अभी तो सिंगर्स नहीं है. तो मैं उनको कहा था कि कहता हूँ कि हमारे पास सोनू निगम जी है, सोनू जी है. बिल्कुल. एब्सोल्युटली फॉर्चुनेट कि वी हैव सोनू निगम जी. नो नो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. इट्स लाइक मतलब इतने वर्सेटाइल, और ऐसा सिंगर मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. बिल्कुल. नहीं सी ही इज अ ट्रेजर. देयर इज एब्सोल्युटली. एग्जैक्टली. जैसे लता जी हैं या आशा जी हैं, मतलब इट्स लाइक अ टू दैट लेवल. मतलब आई वुड से दैट द सॉर्ट ऑफ डेप्थ दैट ही हैज एंड द अमाउंट ऑफ, बोलते हैं ना, कंप्लीट म्यूजिशियन. जी. ही इज वेरी गुड कंपोजर, वी नो. जी. ही इज वेरी गुड म्यूजिशियन. क्या हारमोनियम बजाते हैं,
बाप रे कितना फास्ट बजाता है, कितना अच्छा बजाता है। और गाना तो छोड़ ही दीजिए, जब इन्होंने सारेगामा किया उतना अच्छे से किया है, हम सब जानते हैं। राइट। तो 100%। और एक चीज़ है कि कुछ दिन पहले सोनू जी के लिए हमको मौका मिला था एक सिंगल बनाने के लिए। जी 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 जी, हमने इनफैक्ट बात करी है उसके बारे में। हाँ, वी स्पोक टू सोनू जी। वो गाना जब मैं बना रहा था तो मैं सोचता ही रहा कि क्या बनाऊँ इनके लिए, जितना बनाऊँ उतना कम लगता है। तो बहुत सारा गाना मैं बनाना चाहता हूँ, सबका आशीर्वाद और प्यार चाहिए हमको कि सोनू जी के लिए अगर मैं लाइफ में और 20 गाना भी बना पाता हूँ। मैं इनके साथ जब भी बात करता हूँ मैं यही बोलता हूँ। बट आई थिंक यू नो इट विल बी लाइक रियली वंडरफुल बिकॉज जो आपकी डेप्थ है इन टर्म्स ऑफ मेलोडी एंड द सॉर्ट ऑफ थिंग दैट ही ब्रिंग्स टू द टेबल, आई थिंक इट विल बी लाइक अमेजिंग एक्चुअली। बोलना नहीं पड़ता है भाई जी। मतलब जब गाना बनाते हैं और इनके सामने एक बार सुना दिया बस चुप, अगर मैं चला भी जाऊँ उतना अच्छा इन्होंने गाएंगे। और एक चीज़ याद आ रहा है उस दिन जब प्रिया गुप्ता जी थे रिकॉर्डिंग में, उमंग थे, संदीप भाई थे, तो सोनू जी जब गाना गा रहे थे शुरू किया दर्द, और इतना दर्द लेके उस टाइम तो ऑपरेशन हुआ था आई थिंक थोड़े दिन पहले। सो ऐसा लगा मुझे कि जब बेटी की शादी होती है ना, पराई घर चले जाते हैं, तो सब मुझे फील हुआ कि मैं जब गाना बनाया था और स्टूडियो में आया तो ऐसा लग रहा था कि मैंने गाना बनाया, मेरा गाना है। जब सोनू जी गाए हैं ऐसा लगा कि बेटी का शादी हो गई, परे घर में चल गए। सर मुझे पहली बार किसी ने कहा और मेरा गाना नहीं है। Very simply, आई टोल्ड प्रिया जी कि प्रिया जी अभी मेरा गाना नहीं है, बेटी की शादी हो गई। नहीं गाना डेफिनेटली आप इसमें आप ही नहीं, बेटी की शादी होता जब बेटी अगर खुश रहती है तो खुशी होती है ना। तो मैं इतना खुश था। ऐसे और मैंने कहा ऐसे आदमी है, कौन से कंपोजर ने किस सिंगर के लिए कभी ऐसे कहा होगा, बट दिस इज हाउ ही इज एंड दिस इज व्हाई एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग कि इतने सारे इन्होंने हमको ऑप्शंस दिए थे। मुखड़े के लिए इन्होंने 10 ऑप्शंस छोड़े, अंतरा, सेकंड अंतरा, फर्स्ट अंतरा, लास्ट में जो वो आलाप जैसा एक है, इतने अच्छे से उन्होंने कंपोज करके वहाँ पे इतने सारे टेक्स्ट था। तो मिक्सिंग के टाइम हमको प्रॉब्लम हो रहा था कौन सा रखूँ कौन सा नहीं रखूँ। तो मैं उमंग को फ़ोन करके बोला था आप ओनली वॉइसेस आप यूज़ करो। Maybe you should also come up with another version of it. आराम से हो सकता है। Yeah, I think you should. You are right. I think lyrics भी बहुत खूबसूरत। In fact, खैर ये कैसी खुदा सांस भी रूठी है सीने में आजकल। I think अगर अच्छी lyrics होती है definitely adds a lot of value to any जो जितना उसमें gravitas चाहिए था। तो कुछ आप बताना चाहेंगे that what was your state of mind when you were just because I think you know I've always maintained जो आपके पास एक बहुत ही यूनिक एबिलिटी है that आप लफ्ज़ों के साथ में बहुत इंसाफ आप कर पाते हैं। सिर्फ मतलब नोट्स के अलावा आप लफ्ज़ों में जो उसको कौन से लफ्ज़ को क्या उसमें उसका मीनिंग क्या है, हाँ, वो आपके अंदर एक बहुत यूनिक चीज़ है which I think is something very unique actually। बड़े ही ऐसे होते हैं एक्चुअली। मेरे पापा अगम कुमार निगम जो खुद बहुत बढ़िया गाते हैं जी, वो जब बचपन में हम उनको गाते हुए देखते रहे तो व्हेन ही यूज्ड टू सिंग ऑन स्टेज, उनकी फोटोग्राफी यहाँ लगी पड़ी है, तो स्टेज में गाते रहे तो ही यूज्ड टू सिंग विद सो मच ऑफ इमोशंस दैट आई यूज्ड टू रिमेंबर द अदर people in the band and other singers and other announcer and whatever female singers or whatever, they all used to have goosebumps कि अगम जी क्या गा रहे हैं, अगम जी क्या गा रहे हैं। So I think उनको देख देख के ऐसा feeling आया कि when you're singing you have to emote every word। सांस को सांस दिखनी चाहिए, गम थोड़ी दिखेगा ऐसा। It can't be। So a lot of times there is some people have a intrinsically smiling demeanor, वैसे भी खुश रहते हैं तो उनकी आवाज़ में स्माइल आता है। तो जब वो सैड सॉन्ग गाते हैं तो वो स्माइल को कट नहीं कर पाते वो। करेक्ट, बिल्कुल, exactly। even ghazal singing at times when you see that it's like rather flat sur and everything is perfect but you live at the level of जो कुछ words लोग हैं जो महान माने जाते हैं वो गज़लों में पूरा तवज्जो रहते हैं एक्सप्रेस करने का, तो इसलिए वो महान माने जाते हैं। जी बहुत अच्छे। एक वो ये था ना, कौन अच्छा है कौन बुरा ये हम कहने वाले कोई नहीं होते हैं। Absolutely। अपनी अपनी पसंद होती है। कुछ लोग कलाकारी में बहुत महान होते हैं जी मतलब जैसे यू नो उनकी सरगमों का रियाज, उनकी मुर्गियों का रियाज बहुत ही कमाल होता है, उसको कैसे कम बोल सकते हैं आप। उनका वो रियाज है। किसी का स्पिरिचुअल टाइप बेंट ऑफ माइंड होता है तो वो म्यूज़िक में स्पिरिचुअल ले आते हैं। जैसे जीत भाई जब गिटार बजाते हैं तो गिटार तो हमने बहुत लोगों को सुना होगा, बट कभी आप सिर्फ एक शो रखना है इनका गिटार बजाने का, यू हैव टू सी ही प्लेस द गिटार एज इफ ही सिंगिंग एज इफ द गिटार इज सिंगिंग। ये ऐसे बजाते हैं। अब इसके पास तो वर्ड्स भी नहीं है,
मेरे पास तो ये है कि मैं तन्हा रहूँगा, सब मेरे पास वर्ड्स है, यहाँ पे तो वर्ड्स में नहीं है। उंगलियों से बजाते हैं जो, वो कैसे दिखाते हैं कि आपको लगेगा कि यार ये सैडनेस में बजा रहा है और ये ही इज़ फीलिंग हैप्पी। तो म्यूजिशियंस भी ऐसा कर सकते हैं बिना वर्ड्स के भी। कन्वे करने वाली बात है कि आप कैसे उसे कन्वे कर सकते हैं। सो फॉर मी इफ़ आई एम सिंगिंग, इनका ही मैंने गाया था, दिल धपाक दिल दिल धपाक दिल धक रहा है शायद, नहीं 2000 में गाया था राइट, वो गाना इनके गाया था। और उसके बाद में तेरे लिए ओ तेरे लिए, फर्स्ट फिल्म का था उसमें, रेशम सी वो रेशम सी है ये हवाएं सनम, वाह, आओ जरा, कब का काम किया हुआ है। और अब जाके अभी जा तू कहीं से अभी जा, ये और फिर अभी दर्द का, तो अलग अलग गाने एक ही कंपोजर के गाए हैं। जी। तो यू हैव टू बी एबल टू बी सो जेन्युइन दैट जस्टिस लगे कि जस्टिस की जा रही है उस गाने पे। दिस इज़ व्हाट वी फोकस। दर्द गाना स्पेशल इसलिए है क्योंकि दर्द गाने का नाम है, दर्द मेरी स्थिति थी उस समय की, जो मेरे हाल शरीर था वो दर्द में था। और बस एंड बट देयर लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट दैट सॉन्ग। एक तो एज हम दोनों साथ बैठे यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स वी नो हाउ मच वी रिस्पेक्ट ईच अदर, लव ईच अदर। फिर भूषण, उसको प्यार से नंदू बोलते हैं, वो भी एक अलग ही जुटा हुआ आदमी है, बहुत ही जुटा हुआ है वो। ही इज़ वेरी पैशनेट एंड ही टेक्स अ पर्सनल इंटरेस्ट इन वट एवर ही डज। तो उन्होंने बताया ना, जर्मनी से कॉल आया था, ही वॉज इन जर्मनी डूइंग वट एवर, बट हिज फोकस वॉज कि गाना में कैसे बनाऊँ एग्जैक्टली। एंड देन ही पर्सनली टेक्स इंटरेस्ट कि हाँ भाई ये गाना अच्छा बने और इसको मैं प्रमोट अच्छा करूँ, दैट वे इज़ गुड। देन उनकी कंपनी में प्रिया गुप्ता भी आई हैं, हु इज़ वेरी क्लोज टू मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वन ऑफ द मोस्ट passionate people that I know. So her presence was also very special for me. And last but not the least, Sandeep Singh, who is the producer of the film. Sandeep को मैं रेडियो डेज से जानता हूँ, जब वो रेडियो सक्रिय थे। And उसके बाद when he changed from one station to the other, I got him the second job. So he's that close to me, and today he's an independent producer. So his first film also meant a lot to me. So this song is special in a lot of ways. आपका जैसे काफ़ी आपके जैसे अगर हम लोग सैड सॉन्ग्स की बात कर रहे हैं, आई थिंक यू नो इट्स सरप्राइजिंगली जो दर्द के गाने होते हैं वो जो हैं बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। अगर आप इफ़ यू एनालाइज इन टर्म्स ऑफ रेडियो, जी अच्छा सिला तन्हाई आपका एक गाना है विच इज आई थिंक आउटस्टैंडिंग। एंड 3 इडियट्स में ये दिल दीवाना भी सैड सॉन्ग है। ये ये दिल राइट दीवाना वो भी सैड सॉन्ग है। उस टाइम ऐसा टेक्सचर लेके आए थे सोनू जी, बिल्कुल। कब ये गाना रिकॉर्ड हुआ था? आई थिंक we saw the entire thing. 96 में। सुभाष जी का कंट्रीब्यूशन क्या था आपने जो अभी रिसेंटली आपने आई थिंक रेडियो मिर्ची अवार्ड्स में आपने जो किया, दैट आई सॉ दैट। शाहरुख ने किया था। जी जी हाँ, शाहरुख ने इनफैक्ट एंड आपसे करवाया था क्या? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 3 इडियट्स में भी जो जाने कहा जाने नहीं राइट। सो ये आपको क्या लगता है कि दर्द के जो गाने जो हैं वो कहीं ना कहीं इवन मोहब्बत के गानों से भी ज़्यादा लोगों के दिल के करीब होते हैं, एंड पीपल वांट टू लिसन टू इट फार मोर? पता नहीं, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट रेंडिशन। आई फील देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू इट। मतलब मेरा सबसे बड़ा गानों में से एक बिजुरिया है, तुझे लगे ना नजरिया, वो गाना मेरा स्टेज पर तो सबसे बड़ा है, कोई भी गाना उसके आगे कम है। बट एट द सेम टाइम अभी मुझ में कहीं जब आता है तो उसका एक अलग रिस्पेक्ट होती है, बिजुरिया का अलग लेवल होता है। इट ऑल डिपेंड्स, मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ सैड सॉन्ग बना देने से गाना हिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्या कौन बना रहा है, कौन गा रहा है, लिखा क्या जा रहा है, उसमें कन्वे क्या किया जा रहा है, इट इज़ इवेंचुअली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू बी टू द फैक्ट दैट किस उसका तत्व क्या है। कुछ गाने जल्दी जल्दी हिट भी हो जाते हैं, उसके बाद खो भी जाते हैं, भूल भी जाते हैं जी। कुछ गाने लंबा रहते हैं, जैसे आपने अभी जिक्र किया, सौ दर्द है सौ राहतें, उसको कोई नॉमिनेशन तो नहीं मिला, अवार्ड तो बहुत दूर की बात है, नॉमिनेशन तक नहीं मिला कभी उस गाने को। But one of my finest songs. It will always remain like जाने it is. तो वो कुछ गाने ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं, they might not scale greater heights, big heights, but वो रह जाते हैं। तो ये गाना रह गया लोगों की मेमोरीज में। एक गाना गाया था मैंने मीनाक्षी में, दो कदम और सही, दो कदम और सही, रहमान का गाना था वो गाना लोगों को बहुत पसंद है, दिमाग में रहता है। अब वो सैड सॉन्ग नहीं था, बट वो इट्स अ ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग। साथिया
जी। रोमांटिक सॉन्ग Right. अभी तक लोगों के जहन में है ना. Absolutely. So it all depends. कल होना इज नॉट अ सैड सॉन्ग, इट्स अ फिलोसॉफिक सॉन्ग, लोगों के जहन में है. मैं हूं ना. हाँ मैं हूँ ना, लोगों के जहन में तुमसे मिल के दिल का है जो हाल, तो कवाली है. बट अभी भी तड़ाक तड़ाक शुरू होता है तो लोग ऐसे करते हैं. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. सो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, गाना सही होना जी. चाहिए. बनाने वाले की और गाने वाले के बीच में इतनी केमिस्ट्री हो तो फिर गाना बड़ा बनता है. बिल्कुल. सोनू जी, एक रिक्वेस्ट है, if you can please hum a couple of lines from the song, and if you can please. मैं दर्दों को पास बिठा कर के सोऊं, मैं दर्दों को पास बिठा कर ही सोऊं. जो तुझे लगता बारिश है वो मैं हूँ जो रोऊं, जो तुझे लगता बारिश है वो मैं हूँ जो रोऊं. मैं दर्दों को पास बिठा कर ही सोऊं, मैं दर्दों को पास बिठा कर ही सोऊं. Beautiful. Beautiful, beautiful, fantastic. Sonu ji, actually, on popular demand, a lot of people they've been asking if we can play a rapid fire round with Sonu Nigam and Jeet Ganguly. So now a bit of a fun stuff to just end the interview on. If you can start the rapid fire with Sonu Nigam, if you allow. So rapid fire with Sonu Nigam. Jeet Ganguly as a singer or Jeet Ganguly as a music director, sir? I love him as a singer also. Right. But a composer ज़्यादा मैं जानता हूँ. So as a composer, but that doesn't mean I do not like him as a singer. Just as a preference वाली बात है. He sings wonderfully. Right. बहुत अच्छा Absolutely. लगता है. Absolutely. Yeah. A quality that you have and Jeet Ganguly doesn't. बता तो मैं करेक्ट वर्ड यूज़ करता हूँ. मुझे पता है exactly. I'm just I'm more aggressive. Right. When I want to be, I'm aggressive. Right. He is not aggressive. He is a very simple soul. That doesn't mean I'm not simple, but I can adapt. If I feel there is somebody who deserves my aggression, then I can give it back to him. ये नहीं करते ऐसा. ये इतनी humility और अपने simpleness को ज़्यादा aggression से नहीं दे पाएंगे. He might start having tears in his eyes, but he will not be able to give back to the person. Which मैं गलत तो नहीं बोल रहा, ठीक बोल रहा हूँ. He'll have tears in his eyes. I will be able to give it back to the person. He will not be able to give it back to the person. He will just जब्त कर लेंगे अंदर से, खुद सफ़र करेंगे. तो ये उनमें एक है. Weirdest demand made by a music director from you? हाँ, एक कंपोजर ने मुझे about 10 years back, he just called me to sing a random song for some inconsequential female singer independent album. I said, तुमने बुलाया कैसे मुझे? If it has to be a film song, or if not, मैं जानता है, मतलब कोई किसी की भी प्राइवेट एल्बम में मुझे बिना बोले तुम मुझे बुला लो और गाने के लिए बुला लो. I found it to be awkward because I was already famous at that point. So if I want Lata Mangeshkar to be a part of my album, I'll have to go to Lata Mangeshkar and request her to be a part of my album. You know, there's somebody who doesn't even know or hasn't come to me. I knew her, but she didn't come to me, and the music composer just assumed that I will sing for her album. So I felt it was थोड़ा सा जो लगा कि मतलब he took me for granted at that point. मैंने नहीं गाया. I didn't sing. Sonu ji, a song that you would like to dedicate to the following people. अरे Aishwarya Rai Bachchan. Blue eyes, baby's got blue eyes. When the morning comes. भूल गया मैं एल्टन जॉन का गाना. Beautiful. क्या बात है? Beautiful. शाहरुख खान. शाहरुख खान. हाँ तो हाँ. तू ही तू सतरंगी रे. तू ही तू मनरंगी रे.
Beautiful. Salman Khan. हैंगओवर मैंने पहले गाया था, हैंगओवर। Hrithik Roshan. कोई गाना ग्रीक गॉड पे नहीं है ना? कौन सा? हाँ मेरे तो वही, हाँ कह दो ना, बट डेडिकेशन आई वाज थिंकिंग मैं कुछ ऐसा सोचूं उनके लिए। हाँ मुझे कहीं नहीं, हाँ वो भी है एक्चुअली, ऋतिक पे ही है तो बना। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। Beautiful. Amir Khan. आमिर खान, जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल, all is well। Fantastic, fantastic. I think this is a super hit round, frankly speaking. So, a song of yours you wish should get remade as a single, and what would be your dream cast for it? Remade as a single. Right, I sang a beautiful song for Tanu Veds Manu too, right. and I was aghast when they didn't tell me. मैंने ये बात अभी तो कही नहीं किसी को, बट मैंने सोशल नेटवर्क साइट में कहा था। I felt it was extremely inconsiderate on the part of the director and the composer to not let me know that a song which was so beautiful and जिसको गाने में मैंने इतनी मेहनत की, जिसके लिए मैंने पैसे भी नहीं लिए, और उसके लिए मुझे उन्होंने फ़ोन भी किया, मैसेज भी किया, ओ माय गॉड गाना ऐसा हुआ है, लोग पागल हो गए जब गाना आया उस फिल्म का, ओ साथी मेरे, वो गाना बहुत अच्छा था उस फिल्म का। एंड मुझे बुलाया उन्होंने प्रीमियर के लिए, मैं गया मेरी फैमिली के साथ में, मैंने पूरी फिल्म देखी, एंड तक मैं देख रहा था कि शायद कास्टिंग में गाना आ जाए, बट गाना कास्टिंग तक नहीं आया। आई फेल्ट सो ह्यूमिलेटेड एट दैट पॉइंट। मुझे लगा कि कम से कम बोल देते कि गाना नहीं है फिल्म में, तो मैं आई वुड हैव बीन प्रिपेयर्ड। माय सन हैड टीयर्स इन हिज आईज बिकॉज ही लव्ड द सॉन्ग सो मच। इट्स बहुत मुश्किल गाना है वो, आसान गाना नहीं है वो। अगर आप सुनेंगे एक एक लाइन डिफरेंट है उसकी, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग टू सिंग। तो वो गाना मैंने जब देखा कि मुझे बुलाया गया, बताया भी नहीं गया, और मैं पूरी फिल्म देख के मैं ऐसे बोला भाई यार हम फिल्म की ही देखने के लिए आ जाते, सिर्फ बोल देते कि नहीं है गाना फिल्म में, हम थोड़ी गला काट देते तुम्हारा किसी का। सो आई फेल्ट कि हमारे देश में, हमारी कंट्री में इतनी तक लोगों में कंसिडरेशन नहीं है कि किसी को बोल दो कि यार रियली सॉरी वी ट्राइड अ बेस्ट, वो गाना फिल्म में नहीं हुआ, तो मैं क्या बुरा मान जाऊँगा इस बात का? नहीं हुआ, नहीं हुआ। कितने गाने हम गाते हैं जो फिल्मों में नहीं होते जी, बट टू कॉल अस एंड नॉट टू टेल अस कि वो गाना मतलब फिल्म देख के मैं बाहर आया और हम लोग ऐसे हुए कि यार इसने मजाक किया लोगों ने हमारे साथ में, क्या डिड दे वांट अस टू बी टॉर्चर्ड लाइक दिस आफ्टर द फिल्म? तो इतनी अच्छी फिल्म होने के बाद हम इसको एंजॉय नहीं कर सके। सो दैट्स वन सॉन्ग विच आई थॉट शुड बी स्नैच्ड अवे फ्रॉम द फिल्म एंड गिवन इट टू समबडी एल्स, एंड उसके लिए आई मीन कोई भी इसमें वो गाना ही इतना अच्छा है कि उसमें कोई भी रीशूट होकर आ सकता है, बट दैट सॉन्ग हैज बीन वेस्टेड। क्रेजीएस्ट सिंगिंग एक्सपीरियंस एवर? मैंने लास्ट 2 साल मतलब एक 2012 में और 2014 में अमेरिका में 2 टूर्स किए थे जी, क्लोज टू माई हार्ट, क्लोज टू माई सोल। जी जी जी, इससे ज़्यादा डिवाइन एक्सपीरियंस कभी देखा नहीं मैंने पूरी ज़िंदगी में। वो एक अलग ही माहौल था, मतलब लिटरली बाय द एंड ऑफ द शो यू कुड सी गॉड डांसिंग ऑन द स्टेज, इन द सेंस यू कुड फील द एनर्जी ऑफ गॉड। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा, जिस तरह वो शो बना, क्योंकि इंसान बहुत आसानी से क्रेडिट ले लेता है कि यार मैंने शो किया, मैंने बनाया, ये घर मेरा, ये वो मेरा, बट आई ट्रूली बिलीव इंसान की औकात नहीं है बिल्कुल कुछ भी क्रेडिट लेने की। क्या बात, क्या बात कि हमने बनाया, नहीं बन जाती कुछ चीज़, वरना आप जी तोड़ कोशिश कर लो, ना वो फिल्म बनेगी, ना वो गाने बनेंगे, ना वो प्रोग्राम बनेगा, कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो चीज़ बन गई बस 2012 में, क्लोज टू माई हार्ट एंड क्लोज टू माई सोल 2014 में किया था। आई स्टिल, मैं उसको याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझ पर डिविनिटी की बारिश हो रही है। So while you're recovering right now, so are you missing the live shows? Oh yeah, I'm missing everything. I'm missing walking properly. I have to walk with a walker. It's been 2 months and आज की तारीख 15 है ना, 6 days. And a couple of more months to go. And it's been really painful. Absolutely. No, I can always live shows तो है, but as long as I can come and record in the studios, which I've done his song first, and then I did Azhar's song also. Right. मैंने किया था. So at least
व्हेन आई गो फॉर रिकॉर्डिंग्स आई फील स्लाइटली कि म्यूज़िक मेरे लाइफ से नहीं, एक्चुअली नहीं गया, मैं तो रोज़ गाता रहता हूँ. आई जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, आई एम मेकिंग द मोस्ट ऑफ दिस टाइम. मैंने बहुत रियाज़ किया इन दिनों में एंड आई एम रियली फीलिंग इन टॉप फॉर्म दीज डेज. सो म्यूज़िक तो ज़िंदगी से नहीं गया. हाँ, प्रोफेशनल सिंगिंग, स्टेज शोज़ बहुत छोड़े मैंने इस साल. अभी इस महीने में 2 महीने में मैंने कम से कम 7 शोज़ छोड़े होंगे. 6-7 तो छोड़े ही हैं, आगे भी छोड़ने वाला हूँ. Till September I can't. जैसे अभी हम लोग इनफैक्ट इंटरव्यू पहले जिक्र कर रहे थे दैट ह्यूज फैन ऑफ योर्स, हिज नेम इज मोजेस सापिर फ्रॉम इजराइल, एंड ही वाज आस्किंग दैट, रिक्वेस्टिंग दैट व्हाट इज द लाइनअप ऑफ सोनू निगम्स फिल्म सॉन्ग्स इन द नियर फ्यूचर, बिकॉज योर फैंस आर लाइक रियली ईगर, दे वुड वांट टू. इतने गाने मैं ना तो मेरे पास आते हैं फ्रैंकली, ना ही मैं इतना गाता भी हूँ. आते नहीं हैं क्योंकि द बिजनेस हैज स्लाइटली चेंज्ड, यू हैव टू एडमिट. एवरीबडी हैज़ देयर ओन, म्यूजिक कंपनीज हैव देयर ओन आर्टिस्ट्स, एंड इसमें कोई बुरी बात नहीं है. सो व्हेन आई से दिस, इट्स नॉट आउट ऑफ एनी डिसकंटेंट, इट्स शेयरली आउट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द norm over here. People have companies have their own composers, they have their own singers, all companies, and most of them are contracted to the singers, and they are entitled to do this. It's their business, and I am too senior to be now being in contract with anybody. अब वो मैं भी नहीं करना चाहता, ना वो मुझे अप्रोच भी करेंगे, बिकॉज मैं कोई नहीं, आई एम नॉट न्यू कमर. सो दे विल ओनली कम टू मी when they have a special song, when there's something which others might not be able to deliver. So you don't expect ever me to ever become the same Sonu Nigam that I used to do be earlier, because वो माहौल अलग था. वहाँ पे प्रेशर्स नहीं थे. अगर कंपोज़र को चाहिए मैं गाऊँ तो मैं ही गाऊँगा. आज कंपोज़र बोलेगा तो फिर प्रोड्यूसर कुछ और बोलेगा, कंपनी कुछ और बोलेगी, असिस्टेंट डायरेक्टर कुछ और बोलेगा, ऐसे होता ही है. So there are a lot of factors that have changed. So it will never happen that I will become the same Sonu Nigam जिसके आप रेडियो खोलेंगे तो हर सेकंड गाना उसका होता है. वो नहीं आएगा अब टाइम. And I have accepted this fact because business पूरा change हो गया है. Half the artists that you will encounter now or have you have encountered are already a part of a company. So why will the company give me songs? They will come to me for a song which is a specialized song जो मैं ही गा सकता हूँ या कोई और नहीं गा सकता. And I have accepted it. So thank you very much. I think that is wonderful as far as rapid fire, and Gigi, he is really very forthcoming. So now's your turn. आपको डर. So rapid fire with Jeet Ganguly now. Singing or music direction, which is more difficult? एक्चुअली जो दिल से करे वो अच्छा ही होता है. डिफिकल्ट नहीं बोलूँगा, लेकिन फर्स्ट मैं आई एम अ कंपोजर डेफिनेटली. Sonu Nigam of 2000, that is that era, or Sonu Nigam of 2010 onwards, which is more fascinating for you? सोनू जी जब तक गाते रहेंगे और हम बनाते रहेंगे, और ही इज लाइक माई गॉड. Alright, if given a chance to compose a single with any jodi of Bollywood you wish, which jodi will that be? Say for example, if you're making a single, many times the music video is planned accordingly as well. So जैसे इनका आया था ऋतिक एंड सोनम का इनफैक्ट आया था धीरे धीरे वो समझते हैं. So if that in that regard, which is it that you Which acting jodi? acting jodi? अच्छा, Not composer jodi. मैं थोड़ा अलग ही आपका जवाब दूंगा क्वेश्चन का. एक्चुअली पहले हम लोग देखते थे ना म्यूजिक वीडियो, उसमें सिंगर होते थे, कंपोजर होते थे, म्यूजिशियंस होते थे. आज वो दिखाई नहीं देता है. Correct. वो होना चाहिए. So गाने का जो एक दम होता है ना, गाने का जो मेरिट होता है, वो आना चाहिए सामने. Sonu Ji was there in your song recently. हाँ, That's our song. With the Myra, right? एग्जैक्टली. तो वो म्यूजिशियंस को दिखाई देना चाहिए, वो सिंगर को दिखाई देना चाहिए. यू नो गाने का जो वो सोल है, और जो इमोट करते जैसे सोनू जी जैसा इमोट करते हैं गाना, इनका जो सोलो मैंने बनाया था, तो वो इमोशंस और सिंगिंग जब एक सिंगर करते हैं ना, वो बहुत नेचुरल होता है. Absolutely. जब उनका गाना होता है, खुद का गाना, तो वो हम देखना चाहते हैं. मैं तो देखना चाहता हूँ जिसका जैसा पहले होता था ना, सोनू जी का कितना बड़ा एल्बम दीवाना, उन्होंने खुद किया था. फिर जान है, तब देखेंगे तो इतना अच्छा उसमें सोल कनेक्ट किया है. ऑडियंस आप अभी तक भूल नहीं पाए वो सब एल्बम. No, absolutely. Divana is like very. तो वो आना चाहिए, आई थिंक. बिल्कुल. A thing from yesteryear's song which is missing from current music or songs, according to you. Do you feel that जो पुराने ज़माने के कुछ गाने थे, जो do you feel something missing today? डेफिनेटली. Like okay. कभी कभार तो मिल जाता है डेफिनेटली, बट जो एक जैसा मान लीजिए पंचतंत्र का गाना, सलीला का गाना,
हाँ नौशाद साहब, काफ़ी सारे जो कंपोज़र्स थे, अपना शंकर जयकिशन साहब का गाना, तो इनका मदन मोहन साहब, इनका जो मेलोडी का जो रंग था ना, जी जी, वो डेफिनेटली मिस करते हैं 100% ऑनेस्टली स्पीकिंग। और अभी ये कुछ नोट्स है, पता नहीं, सब बोलते कि पुराने नोट्स हैं, नोट्स कभी पुराने नहीं होते। वो जो गायकी का जो अंदाज है वो कभी पुराना नहीं होता है। व्हाट इज़ न्यू वो सारेगामा के अंदर ही है, लेकिन जो नया बोल रहे हैं, लेकिन वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन चलते हैं, फिर वहीं वापस। आप देखो कितने सारे What he means to say is, may I intervene? बिल्कुल बिल्कुल, absolutely, What he absolutely. means to say is, I'll tell you because we've discussed this in the past also. What he means to say, from the past music, there are a lot of, एक बहुत बड़ा खजाना है जो he is not able to utilize today. जी जी, क्योंकि reservations बहुत हैं, ऐसा मत बनाओ, ये मत करो. So he is missing as a composer, and not just him. I think a lot of people who are composers of a higher order will be missing that freedom कि मैं जो चाहूँ वो बनाऊँ और मैं अपनी चीज़ को पेश करूँ. बिकॉज अब बहुत सारे जो जिस तरह का फ्रीडम पहले था, मैं राइट, मदन मोहन साहब बता रहे तो यू विल सी मदन मोहन साहब का दिखेगा रंग, ये मदन मोहन साहब के हो गए. बिल्कुल. फिर एस डी बर्मन दिखते थे, रोशन साहब दिखते थे, जयदीप दिखते थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शंकर जयकिशन दिखता था उनका. सो अभी मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स आर साउंडिंग सेम बिकॉज नो कंपोजर इज अलाउड टू डेवलप हिज ओन पर्सोना, हिज ओन स्टाइल. होता है बट उतना नहीं हो पा रहा जितना पहले के ज़माने में फ्रीडम था कि ओपी नैयर 9 लोगों में म्यूज़िक रिकॉर्ड कर सके और वो अलाउड हो और वो कश्मीरी कली बन के सुपरहिट हो जाए. सो वो जो फ्रीडम थी, बिकॉज ही वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, बंगाली में तो एक्सप्लेन कर रहे थे वो. An English singer that you like to collaborate with? Enrique is my choice. Enrique Iglesias. Okay. is good. Alright. Gigi, if you have to rate the following singers on a scale of 10, 1 to 10 for their singing skills, so how will you rate them? Sonu Nigam. 100. Okay, that's a good headline actually, to be honest. Alright, Shan. 7. Alright, Arijit Singh. 7. Vishal Dadlani. विशाल का एक स्टाइल है एक्चुअली, मतलब ठीक है, आपको 6. 6 out of 10. Yeah. Alright, so I think for that he has made up quite a bit actually, as far as the rapid fire is concerned. 100 देके फंस गया. So Definitely. that was quite forthright and I think politically incorrect as well, which we love actually, absolutely love actually. So it's like but I think बात नहीं कर सकते rapid fire. Rapid fire, I think, but the winner has to be Sonu Nigam. You'll have to accept. I think he was very forthright. एक्चुअली देखिए, गाना अभी कोई भी गाना सोनू जी गा सकता है डेफिनेटली. आप क्लासिकल दे दो, आप वेस्टर्न दे दो. हम लोग बात कर रहे थे ना कि ये दिल दीवाना, वो कब का था, वो इन्होंने एक नया टेक्सचर उस टाइम लेके आए थे, वो गाने में. तो वो कोई भी गाना आप सोनू जी को दे दो गा लेंगे. जैसे श्रेया, शी इज़ माई फेवरेट सिंगर. Yeah, she is very versatile. उनका जो रिवाज है, उनका जो तैयार है, बहुत तैयार है, बहुत तैयार और है. आवाज़ की क्वालिटी भी बहुत कितनी अच्छी कोयल जैसी आवाज़ है. और हाई नोट में वो जाओ, उनका वो वहाँ भी करती है. वो श्रील हो जाता है, कभी कभी वॉइस होता है सिंगर्स का, लेकिन उनका नहीं होता है. Sonu ji, एक रिक्वेस्ट थी, as we end this interview, any of the songs that you've done with G, if you can please end the interview with that. अभी जा. ये वर्ड्स मुझे तो ना छुप गई शामें किस गली जाने, छुप गई शामें किस गली जाने, गिर गई ना 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 गिर गई हाथ में जैसे लकीरें,
हवाए रोज आते जाते सुनाए मुझे तेरी बातें, ये मेरे रात दिन कुछ खास होते, शर्त ये है अगर तुम पास होते, आ भी जा तू कहीं से, आ भी जा, आ भी जा तू कहीं से, आ भी जा. Fantastic. You know, it's been like a truly privilege actually. It's like a truly privilege to just listen to your amazing, in fact, voice and his guitaring and his lovely smile as well. I think his smile, you know, it has music into it. Seriously. So thank you very much for your wonderful, in fact, just sharing your thoughts wonderfully with us. It's like we are really honored actually, because I think आप इतना खुल के शायद बहुत नहीं बोलते हैं. And we are really privileged that you spoke your heart out. Thank you very much, Sonu ji, and thank you very much, Jeet bhai. That's all we have from Bollywood Hungama. Keep on watching.